لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کی آج ادائیگی۔ کرونا کے باعث خصوصی اقدامات، محدود عازمین میدان عرفات میں خطبہ حج سنیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا ہوں گی۔ رونق کعبے کا منظر، غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب۔ تیاری میں 120 کلو سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو ریشم کا استعمال۔ مکہ مکرمہ میں بادل برس پڑے، منی اور عرفات میں بھی باران رحمت۔ کرونا مزید 32 جانیں لے گیا، اب تک 5924 اموات، ملک بھر میں 2,77,402 شہری متاثر۔ سندھ 1,20,052، پنجاب 92,655 مریض، خیبر پختونخوا 33,845، بلوچستان میں 11,708 کیسز۔ FATF اور ملکی امور سے متعلق اہم ترین قانون سازی، سینٹ کا اہم اجلاس 1 گھنٹے بعد۔ قومی سلامتی کے حوالے سے قانون سازی میں تاخیر نہیں ہونے دیں گے وزیر اعظم۔ ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومت کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا بھی آج اجلاس، حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ FATF کے لیے بروقت قانون سازی ضروری، بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، ایسا ہوا تو نتائج بھیانک ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی ماضی کی حکومتوں کی مسلسل ناکامیوں کے باعث گرے لسٹ میں گئے۔ شہزاد اکبر شہباز شریف کی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک مشاورت، FATF سے متعلق زیر غور قوانین کے جائزے کے لیے اپوزیشن کے سینیٹرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ تانیہ ہیدرس اپنی کمپنی کے متعلق وضاحت دینے میں ناکام رہیں، ظفر مرزا بھی ادویات کی قیمتیں کم کروانے میں ناکام۔ بھارت سے خام مال کی درآمد کا معاملہ غلط ہینڈل کیا گیا، معاونین خصوصی سے استعفے لینے کی تفصیلات منظر عام پر۔ شہر قائد میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر وزیر اعظم کا نوٹس، عمران خان نے پاک فوج کو صفائی سے متعلق ٹاسک دے دیا، چیئرمین NDMA کو کراچی پہنچنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، نارووال، سیالکوٹ میں بھی باران رحمت، بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ عوام کی جیبوں پر پھر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری، 1 اگست سے پیٹرول 7 اور ڈیزل 9 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اطلاق ہوا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز اس بریک کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کی ادائیگی جاری ہے۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ آج ادا ہوگا۔ عازمین نے رات بھر منی میں خصوصی کمپلیکس میں قیام کیا ہے۔ کورونا کے باعث احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کی ادائیگی جاری، ہر طرف روح پرور مناظر۔ عازمین آج حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات پہنچ رہے ہیں، جہاں خطبہ حج دیا جائے گا۔ عازمین نے رات بھر منی میں خصوصی کمپلیکس میں قیام کیا۔
हुज्जाज दिन भर अराफात में क़याम और मगरिब की अजान के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा की जाएगी। रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले मैदान और पहाड़ों पर क़याम होगा। अल्लाह के मेहमान जुमे की फज्र की नमाज के बाद मिना रवाना होंगे, जहाँ वो शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। फिर तवाफ़े ज़ियारत होगा। कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को ही हज की इजाज़त दी गई है। 70% आज़मीन हज गैर मुल्की हैं जो सऊदी अरब में ही मुकीम थे, जिनमें पाकिस्तानियों की भी कसीर तादाद शामिल है। मक्का मुकरमा में काबा को गुस्ल और गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब हुई। तकरीब में कलीद बरदार काबा, मुंतज़मीन, सऊदी हुक्काम और गिलाफ साज किस्वा फैक्ट्री के जिम्मेदार भी शरीक हुए। मुकर्रमा में खाना काबा को गुस्ल देने और तब्दीली गिलाफ काबा की पुरवकार तकरीब हुई। खाना काबा को गुस्ल देने के बाद खालिस सोने, चांदी की तारों और खालिस रेशम से तैयार करदा गिलाफ तब्दील किया गया। गिलाफ की तैयारी में 100 किलोग्राम से जायद खालिस सोना, चांदी और 675 किलोग्राम खालिस रेशम का इस्तेमाल किया गया है। गिलाफ काबा की लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 35 से 40 फुट है। इसकी तैयारी पर 24 मिलियन सऊदी रियाल लागत आई। गिलाफ काबा के चारों कोनों पर सूरह इखलास मुनक्किश है। इसके अलावा गिलाफ पर मुख्तलिफ आयात कुरानी पर मुश्तमिल 16 पट्टियाँ अलग से जोड़ी गई हैं, जिन पर आयात रब्बानी को सोने, चांदी और खालिस रेशम से तहरीर किया गया है। आया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गिलाफ काबा को मक्का अल मुकर्रमा की दारुल कस्वा फैक्ट्री में तैयार किया गया। गिलाफ काबा की तैयारी के उमूर के लिए अलहदा महकमा और उम्मुल जौद बंदरगाह पर उसका एक खुसूसी कारखाना कायम है, जिसमें गिलाफ काबा की जदीद तरीन तकनीक के मुताबिक तैयारी के लिए तमाम जरूरी इंतजामात किए गए हैं। उतारे जाने वाले गिलाफ काबा कस्वा को टुकड़ों की शक्ल में बैरूनी ममालिक से आए हुए सरबराहान मुमलकत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को बतौर तोहफा पेश किया जाता है। 1962 में गिलाफ काबा की तैयारी की सआदत पाकिस्तान के हिस्से में भी आई थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का बारिशी पानी की स्टोरेज के प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला सामने आया है। उस्मान बुज़दार ने मंसूबा दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाएंगे, ये कहना है उस्मान बुज़दार का। मजीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, आजमाइशी बुनियादों पर लाहौर में इसका आगाज हुआ था, क्या यहाँ पे कामयाब करार पाया जिसके बाद दूसरे शहरों में भी इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो आजमाइशी तौर पर लाहौर में ट्रायल हुआ था वो कामयाब रहा और उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-ताला सतही इजलास हुआ, जिसमें बुज़दार हुकूमत ने बारिशी पानी के जो अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं उनका दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया और वज़ीर आला ने लाहौर के साथ साथ सूबे के दीगर शहरों में भी ऐसे प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाने का हुक्म दे दिया गया और सीरा किए गए पानी को जो है हार्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बारिशी पानी को साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लाहौर में तकरीबन 14 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अंडरग्राउंड जो है स्टोरेज टैंक बनाया गया है और नीरज कॉलोनी से लेकर गुलशन रावी तक नई सीवेज लाइन बिछाई जा रही है, जिस पर 14 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह लाहौर में जो सरफेस में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके लिए भी इस मंसूबे पर तकरीबन 21 अरब रुपए खर्च करने का फैसला किया गया और तमाम वार्फर्स को बिजनेस प्लान जो है वो तैयार करने की हिदायत की गई है। और वज़ीर आला पंजाब ने यह भी ऐलान किया है कि हार्टिकल्चर अकेडमी बनाई जाएगी, जिसमें अकेडमी में जो है वो हार्टिकल्चर के बारे में तरबियत दी जाएगी। शुक्रिया लियाकत अंसारी। अवाम के लिए ईद पर बुरी खबर यह है कि 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9.5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ओगरा की जानिब से भेजी गई समरी में पेट्रोल 7 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का इत्तलाक करेगी। FATF और मुल्की अमूर से मुतालिक अहम तरीन कानून साजी सेनेट का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौमी सलामती के हवाले से कानून साजी में ताख़ीर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का भी आज इजलास होने जा रहा है, जिसमें ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान को हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आज दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी होना है। सेनेट का अहम इजलास जो 10 बजे शेड्यूल था, बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद उसका आगाज हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि FATF के लिए बरवक्त कानून साजी ज़रूरी है। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ऐसा हुआ तो नताइज भयानक होंगे। अपोजिशन मामले को नैब कवानीन से ना जोड़े। मुअव्विनीन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि माजी की हुकूमतों की मुसलसल नाकामियों के बायस नाम ग्रे लिस्ट में गया। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये वो कानून साजी है जो हमें दरकार है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में लाना और हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिलाना। जो उनका अज़्म है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से धकेल कर ब्लैक लिस्ट में ले जाना। अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो उसके बड़े भयानक असरात हैं। हमने अपोजिशन से दरख्वास्त की और शर्त जो उनने आयद की वो ये थी कि अगर फैटिफ पे आप हमसे कानून साजी करवाना चाहते हैं तो नैब लॉ पर आप हमारे तरामीम कबूल करें। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ब्लैकमेल मत कीजिए और ना ये गवर्नमेंट ब्लैकमेल होगी। पाकिस्तान की खातिर कानून साजी कीजिए और इन दोनों को डी लिंक कीजिए, मत जोड़िए। ग्रे लिस्ट में जाने के लिए ये नहीं होता कि अचानक कोई एक इवेंट हो और आप ग्रे लिस्ट में चले जाएं। इट इज़ एक्चुअली चेन ऑफ इवेंट्स। एक पूरा सिलसिला चलता है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, नाकामियों का, कोताहियों का, दो सियासी खानदानों का जिन्होंने पहले ही से एक चार्टर ऑफ करप्शन किया हुआ था। एक चैंपियन है फेक अकाउंट्स का केस, एक दूसरा चैंपियन खानदान भी है, वो है टीटी शरीफ खानदान। 34 टांके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर 34 तरामीम यानी कि तकरीबन उसको गैर फहाल करने की एक ड्राफ्ट है। अब इस ड्राफ्ट से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये NRO नहीं है, ये NRO++ है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के दो मुअव्विनीन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया इदरिस ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। और ये बात इस्तीफे तक कैसे पहुंची, दुनिया न्यूज़ ने इसका पता चला लिया है।